So hello, we were doing PYQs for EPFO, and in that we were doing questions for accounts officer, enforcement officer, and assistant provident fund commissioner. So last video में the question that I gave was where was Azad Hind Fauj formed, and these four were the options. और भी हमने कुछ questions देखे थे एंड साथ ही हम वो भी देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है इस बार questions जो आ सकें एंड इसलिए जो प्रीवियसली आए हैं questions उससे रिलेटेड भी हम डिटेल्स देख रहे हैं क्योंकि जनरली क्वेश्चंस आर लाइक दैट ओनली. सो हमने फैक्ट्री एक्ट देखा था, हमने ये भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जब आया तो किसके टाइम पे आया था. रिबन से हमने नाम याद रखा था, रिपन. रिपन के टाइम पे आया था फर्स्ट में हमने देखा था क्या, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड. एंड सेकेंड में फिर विमेन एंड चिल्ड्रन दोनों से रिलेटेड जो चेंजेस आए वो सब हमने डिस्कस किए थे. दीज आर दी चेंजेस एंड डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस एज वेल. सो यू कैन गो and check the playlist EPFO on the same channel and you will find. At the same time, you will find PDF on the Telegram. The name of the channel is EDUASTRA. You can go there, find the PDF and can revise from there. At the same time, you will find other PDFs as well, like survey, budget, important indices and report जो भी रही for other exams as well. Now let's come back to this question. Where was Azad Hind Fauj formed? Singapore, Tokyo, Berlin and Rangoon. So firstly we'll do this, then we'll talk about this question. So the first Indian National Army was formed in September 1942 under Captain Mohan Singh. कहाँ पे? In Singapore. So we have already reached our answer. The answer is what? Singapore. Singapore. Most of you might have thought कि Tokyo is the right answer क्योंकि Tokyo से रिलेटेड आपने काफ़ी डिटेल पढ़ी होंगी. एंड जब जापान आया भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से लड़ने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी के साथ, वहाँ पे एक मेमोरियल भी बनाया गया नॉर्थ ईस्ट में. यू टेल मी किस स्टेट में मेमोरियल है इंडियन नेशनल आर्मी का. तो यू माइट हैव थॉट कि टोक्यो इज़ द राइट आंसर, बट द राइट आंसर इज सिंगापुर. ओके, लेट्स मूव अहेड. इट कंप्राइज अराउंड 12,000 इंडियन prisoner of wars willing to secure independence from British rule in alliance with Japanese assistance. The Japanese sought cooperation with nationalists in Southeast Asia, including India, to help them in their war effort. Gyani Pritam Singh of Indian Independence League initiated contact with the Japanese, leading to cooperation. Then Captain Mohan Singh was tasked with organizing an Indian National Army using Indian prisoner of wars. Now Mohan Singh's leadership and the control by Indian officers rallied Indian soldiers to join the INA. Then the reasons of Indian soldiers and civilians joining the Indian National Army included nationalism, feelings of betrayal by the British, racial discrimination and fear of Japanese atrocities. Because obviously you were with the British Indian Army and now you are a prisoner of war in some other country, Japan में, so definitely atrocities are going to be there. Then Mohan Singh refused to provide INA soldiers for Japan's campaign in Burma against the British. This led him to resign and dissolve the first Indian National Army by December 1942. Revival of Indian National Army under Subhash Chandra Bose. In July 1943, Bose arrived in Singapore and took leadership of Indian National Army, reshaping it as a nationalist force rather than just supporting Japanese military goals. The Azad Hind Fauj or Second Indian National Army was formed by unifying the residual soldiers of the First Indian National Army with the large influx of Indian civilian volunteers in Southeast Asia, electrified by Bose's leadership and call to arms against British operation. तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दो आर्मी थी, उसी आर्मी की बात हो रही है, बट फर्स्ट फेज रहा उस टाइम कौन थे, एंड देन सेकेंड फेज में सुभाष चंद्र बोस वॉज दी वन हु वॉज टेकिंग द चार्ज. देन द आईएनए वॉज स्ट्रक्चर्ड इनटू 3 ब्रिगेड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन देयर रिलेटेड टू दिस. सो 3 ब्रिगेड्स कौन कौन सी, गांधी, आज़ाद एंड नेहरू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो GUN इज गन, यू कैन रिमेंबर इट लाइक GAN, ज्ञान. ठीक है, तो दैट इज गांधी, आज़ाद, नेहरू. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रेजिमेंट वॉज देयर, उस पर चलेंगे अभी. एट इट्स पीक स्ट्रेंथ द INA हैड अराउंड 60,000 ट्रूप्स इंक्लूडिंग द रानी झांसी रेजिमेंट. ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्राइजिंग women soldiers headed by Captain Lakshmi Swaminathan, and after she got married, Lakshmi Sehgal. So again very very important detail. Lakshmi Swaminathan was the one heading this Rani Jhansi regiment, and बाकी GAN, Gandhi, Azad and Nehru brigades.
Then Subhash Chandra Bose, through the first National Army, introduced the Indian tricolor as the national flag, and Tagore's song Jan Gan Man Adhinayak as the national anthem. किसने लिखा है नेशनल एंथम? जनगण मन टैगोर. यू टेल मी कितना टाइम होना चाहिए, सेकेंड्स में है या मिनट में है, एंड यू टेल मी द एग्जैक्ट टाइम जो इसके लिए रखा गया नेशनल एंथम के लिए. एट द सेम टाइम टेल मी व्हाट इज अमार सोनार बांग्ला. ये क्या है, कौन सा सॉन्ग है, किसी कंट्री का नेशनल एंथम है या नहीं है, एंड किसने लिखा है. सो किसने लिखा है, दैट आई टेल यू, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. अमार सोनार बांग्ला भी एंड एट द सेम टाइम जनगण मन भी. दोनों नेशनल एंथम है, दैट इज़ इंडिया का जनगण मन एंड यू टेल मी द नेम ऑफ द कंट्री जिसका है अमार सोनार बांग्ला. लिखा गया बेसिकली कब, जब बंगाल को डिवाइड किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल. यू मस्ट हैव रेड हिस्ट्री में. इफ़ यू हैवंट देन नो प्रॉब्लम, यू विल फाइंड द PDF ऑन द चैनल. वी विल ऑल्सो डिस्कस हियर एज वेल. द INA फ्लैग विद द स्प्रिंगिंग टाइगर सिंबल एंड मोटो इत्तफाक एतमाद कुर्बानी. वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मतलब क्या है, यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस. इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. देन ही ऑल्सो established Jai Hind as the national greeting, cultivating unity among all Indians regardless of caste and creed. किन्ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने. देन मोटो क्या रखा, इत्तफाक एतमाद कुर्बानी, दैट इज यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस. Then the Azad Hind Fauj led by Subhash Chandra Bose controlled the Andaman Islands and parts of Manipur briefly. In 1944, the INA attempted to invade India from Imphal and Kohima in northeast India, moving down the coast toward Burma. However, this campaign ultimately ended in failure. However, the defeat of Japan and Germany in World War II dashed its hope as INA lacked the resources to continue independently. Its major ambition of creating a march on Delhi remained unfulfilled. And you tell me, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ, ठीक है, ईयर 19 वॉट से 19 वॉट तक. After World War II ended in 1945 with the defeat of the Axis powers, the British conducted a series of court-martial proceedings known as the Indian National Army Trials or Red Fort Trials. Very very important fact. Between November 1945 to 1946, रेड फोर्ट ट्रायल भी बोला गया है, INA ट्रायल्स. द फर्स्ट नोटेबल पब्लिक ट्रायल इन्वॉल्व INA ऑफिसर्स. तो ये भी क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में, ये पहले UPSC के, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमने डिस्कस किया था कि द क्वेश्चंस विच कम इन UPSC प्रीलिम्स आर समटाइम रिपीटेड इन EPFO एज वेल. सो ऑफिसर शाह नवाज खान, प्रेम सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो. एमिनेंट लॉयर्स ऑफ द टाइम इंक्लूडिंग भूलाभाई देसाई, SF अली, शरद चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू and कैलाश नाथ कटजू were part of this committee. Again, this thing is also very important कि कौन कौन lawyers थे. Okay, then, so before we come to this, I'll tell you some important facts about INA and Subhash Chandra Bose at the same time. So although PDF notes are also there, not yet fully prepared, so I'm using this book. If you have gone through the EPFO का strategy वाला resources वाला video, तो उसमें आई हैव एक्सप्लेन कि कौन कौन सा पोर्शन जो है बहुत डिटेल में उन कौन कौन से सोर्सेज से यू कैन कवर. तो उसमें हमने बात की थी इस बुक की, दैट इज स्पेक्ट्रम. कंडीशन इज बिट बैड, नो प्रॉब्लम, द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी मच इंटैक्ट. सो इससे आई विल टेल यू फ्यू मोर डिटेल्स. सो फर्स्टली अबाउट सुभाष चंद्र बोस, ही पास द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन securing 4th position but resigned from the service in 1921 to join the struggle for freedom by becoming a member of the Congress. His political guru was, very important question, C.R. Das or Chittaranjan Das, and he became mayor of Calcutta in 1923. Then he was jailed many times by British, and जब ये एक्टिव थे ज़्यादा, उस सेम टाइम पे गांधी जी भी एक्टिव थे, बट कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम उनकी आइडियोलॉजी से आगे बढ़ेंगे. तो दैट टाइम पे ही पार्टेड वेज एंड ही डिसाइडेड टू गो हिज ओन वे कि उस तरीके से मैं करूँगा. अचीव गोल सबका वही था, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, पर तरीका अलग अलग. देन इन मार्च 1940 बोस कन्वेंड एन एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़. इट वॉज जॉइंट एफर्ट ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड किसान सभा. It was resolved at the conference that a worldwide struggle should be launched on April 6, the first day of National Week, with a call to the people to help the imperialist war with any resource. क्या क्या चीज़ें, अब कुछ भी रिसोर्स हो सकता है, मैन, मनी, मटीरियल एंड सो ऑन. Then later on he was arrested, but he escaped
and on January 26, 1941 reached पेशावर अंडर सूडो नेम जियाउद्दीन। जियाउद्दीन नाम से पेशावर गए, जिसमें उन्हें हेल्प किया भगत राम ने। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रिस्प है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उनका प्लान हुआ कि हम रशिया को अप्रोच करते हैं हेल्प के लिए, पर रशिया ने खुद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ के रास्ते वर क्लोज्ड। तो वो जर्मनी गए एंड जर्मनी में हिटलर से मिले विद सूडो नेम ऑरलैंडो मोजूता, एंड हिटलर की हेल्प से ही फॉर्म्ड फ्रीडम आर्मी और मुक्ति सेना। तो अब इसमें कौन लोग थे, तो सेम जैसे इंडियन नेशनल आर्मी में थे, जर्मनी और इटली में जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर थे इंडियन ओरिजिन के, उन सबको मिला के बनी है फ्रीडम आर्मी। एंड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी ही वॉज कॉल्ड नेताजी, एंड वेरी फेमस थिंग, ही गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद फ्रॉम फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ऑन October 21, 1943 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म दी प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया एट सिंगापुर। किस किस को क्या क्या पोर्टफोलियो दिया इसमें, H.C. चैटर्जी फाइनेंस पोर्टफोलियो, M.A. अय्यर ब्रॉडकास्टिंग, लक्ष्मी स्वामीनाथन विमेन डिपार्टमेंट, एंड सो ऑन। एंड द फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यू मस्ट हैव हर्ड दिस, वाज गिवन इन मलाया। एंड INA का हेडक्वार्टर 1944 में कहाँ शिफ्ट कर दिया, रंगून। तो इवन इफ यू सी उस क्वेश्चन में, देन ऑल दी ऑप्शंस वर somehow related to the Indian National Army. Then in the last video I told you कि you tell me कि where are Shahid Dweep and Swaraj Dweep. So these were the names given to Andaman and Nicobar Islands. Then one more important fact, on April 14th, Colonel Malik of the Bahadur group hoisted the INA flag for the first time on the Indian mainland at Moirang. कहाँ पे है वो, मणिपुर में, where the INA Memorial Complex stands today, to enthusiastic cries of जय हिंद and नेताजी जिंदाबाद। तो very important fact, इससे भी क्वेश्चन आए हैं पहले। You will find all of these details in the PDF as well on the Telegram. The name is EDUASTRA. Then on 18th of August 1945 he died mysteriously. एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था कहाँ पे, ताइवान, तेपी में। ठीक है, तो that's it about the INA and सुभाष चंद्र बोस. You will find other details as well in the PDF and we'll discuss later as well जब हम पूरा systematic करेंगे। अभी we are just focusing on the information based on the questions that we are doing. Then in the following 5 items each sentence ही हमने देखा था कल। ठीक है, हमने फर्स्ट 3 किए थे एंड इसके लिए मैंने बोला था दैट यू विल आंसर दिस। ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ एम्पल प्रूफ दैट ह्यूमन एम्बिशन डैश नो लिमिट, नोज कीप्स क्रॉसेस मार्क्स। तो एस इज यू आर वेरी श्योर अबाउट दिस, यस तो आएगा ही। एंड इधर क्या आएगा, नोज नो लिमिट्स, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ एम्पल प्रूफ, देयर आर एम्पल प्रूफ इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड that if a human decides that I'll do this particular thing, then that person do everything to achieve it. So same way that human ambition knows no limit, there are no limits, तो यहाँ पे क्या आएगा, knows. Next, good history presents several perspectives on a period, but these divergent views must dash into an integrated whole, must be made, must be fused, fit या be balanced. So the correct answer is fit. Good history presents several perspectives on a period, but these divergent views must fit into an integrated whole. Now हमने ये भी डिस्कस किया था इन दी प्रीवियस वीडियो कि देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली ईडियम और फ्रेजेस उठा के दे दिए जाते हैं। सो देर इज़ वन प्लेलिस्ट इंग्लिश का, इसमें ईडियम फ्रेजेस डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में, एंड यूल फाइंड PDF ऑफ द सेम ऑन दी चैनल, सो यू कैन गो हैव अ लुक, क्योंकि इंग्लिश इज़ वेरी स्कोरिंग इन दिस। हमने जब फर्स्ट वीडियो देखा था अबाउट दी स्ट्रैटेजी एंड कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से आते हैं, तो इंग्लिश कैरीज दी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वेरी इजी क्वेश्चंस। सो इफ यू आर इवन थिंकिंग ऑफ लीविंग दीज 20-25 क्वेश्चंस इंग्लिश के, देन यू नीड टू वेक अप बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ बिग लॉस फॉर यू। तो इसमें आपको करना ही है, हमने डिस्कस किया था कि इसमें एटलीस्ट यू हैव टू मार्क 18 क्वेश्चंस करेक्टली, so that even if you take risk in the other portions, this thing will balance out things. ठीक है, next, in 1927 Lord Birkenhead, Secretary of State for India, appointed a committee of 3 members to inquire into the relationship between the Indian states and the British government and to make suggestions for more satisfactory adjustment of the existing economic relations between the Indian states and British India. Among the following was not अ मेंबर ऑफ द कमेटी, इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था उस कमेटी का। तो हमने कल भी बात की कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत डिटेल में दिए रहते हैं। सो हमने पहले भी जो देखे, आगे भी हम देखेंगे क्वेश्चंस, यू विल सी वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन होने के देयर आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बोथ। मेरिट इज कि आपको थोड़ा आइडिया है तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन, शायद यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर। डीमेरिट इज
that you will invest a lot of time in reading the question. Then जो हमें स्टेटमेंट वहाँ दिया हुआ था दैट वाज अबाउट द बटलर कमेटी. ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं तो विल रीच आवर आंसर. द हारकोट बटलर कमेटी ऑल्सो नोन एज द इंडियन स्टेट्स कमेटी. ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नाम याद रखना है. ऑल्सो नोन एज इंडियन स्टेट्स कमेटी वॉज अ 3-member कमेटी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1927. किस लिए बनाई गई है? टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामाउंट पावर ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया एंड द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. द कमेटी चेयर्ड बाय सर हारकोट बटलर, ऑब्वियसली उनके नाम पे रखी गई है तो उन्हें तो रखा ही जाएगा. एंड ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ विलियम सियारले होल्ड्सवुड एंड सिडनी पील. Visited 16 states and submitted its report in 1929. The question of sovereignty and paramountcy, which refers to the superior authority, control exercised by the British Raj over the princely states, was undefined at the time. Growing demand among the princely states to clarify the term. So firstly, 3 names were Harcourt Butler, William Ciarle Holdsworth and Sidney Beale. अब हम एक बार ऑप्शंस में जाते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर दी ऑप्शंस. हमें थोड़ा ऊपर जाना होगा. तो हारकोट बटलर, विल्सन वाई, WS होल्ड्सवर्थ, SCP. यू टेल मी नाउ व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर. जो हमने वहाँ 3 नाम देखे हैं उनमें से कौन सा नाम है जो हमने यहाँ नहीं देखा या नहीं है वहाँ पे. ठीक है, मोर ओवर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप यहाँ देख सकते हो इस किस लिए ये थी. ठीक है, कब बना 1927. देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यू टेल मी प्रिंसली स्टेट को प्रीवी पर्सेस मिलते थे. व्हाट इज़ दिस एंड ये कब एंड हुआ, किसके टेन्योर में एंड हुआ, किसने एंड किया. एंड टू प्रीवी पर्सेस, और ये क्या थे, किसको मिलता था. ठीक है, देन मोर अबाउट बटलर कमेटी. द मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. नाउ हियर यू टेल मी हु वाज मोंटेगू एंड हु वाज चेम्सफोर्ड. तो आई गिव यू वन इन्फॉर्मेशन कि वन यूज टू बी दी वाइसरॉय एंड अनदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. तो इनमें से कौन क्या था, यू टेल मी. रिफॉर्म्स, also known as the Montfort Reforms, had created a chamber of princes as a consultative and advisory body with no say in the internal affairs of individual states and no power to discuss matters concerning existing rights and freedom. However, the question of the extent of sovereignty and paramountcy remained undefined. In order to examine the nature of relationship between the states and government, the Butler Committee was established in 1927. with the objective of inquiring into the relationship between, जो हमने अभी देखा किसके बीच में, इंडियन स्टेट्स एंड पैरामाउंट पावर जो ब्रिटिश अपने थे राज, एंड टू सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग रिलेशंस बिटवीन देम एंड द ब्रिटिश इंडिया. तो ऑब्वियसली बाद में उन्हें बहुत रिलेशन से फ़र्क पड़ने लगा. पहले वो सब कर रहे थे पूरा ऑपरेशन, भले वो टी प्लांटेशन पे हो या इंडिगो प्लांटेशन में हो, किंग्स के साथ हो, अलग अलग किंगडम्स के साथ हुआ. और बाद में क्या था, लोगों को अब स्वराज चाहिए था जो इंडियंस थे. तो अब इन्हें कुछ कुछ करना पड़ेगा. तो अलग अलग लॉज लेके आए कि हम तो चाहते हैं आप लोग गवर्न करें, पर थोड़ा थोड़ा उसमें पावर दे दिया. कुछ राइट्स दिए, कुछ नहीं दिए. कुछ चीज़ें दे दिया कि इस पर यू कैन डिस्कस, कुछ चीज़ें दे दिया कि इन पर यू कैन नॉट. सो विल सी ऑल दैट एज वेल व्हेन वी विल डू दैट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. अभी आर डूइंग जस्ट क्वेश्चंस के साथ में. सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अंडर कॉर्नवालिस सिस्टम the districts were divided into thanas or police jurisdiction of 20-30 square miles. Each of them was placed under an officer of government under the denomination of daroga. The daroga system was introduced in Madras in 1812. The daroga was nominated by the district magistrate. Now you have to select what? Select the correct answer using the code given below. जो हमने स्टेटमेंट देखी 4 स्टेटमेंट्स, इनमें से 1 और 2 सही है, 2, 3, 4 है, 1, 3, 4 है या 1, 2, 4 है. तो वन फैक्ट इज डेफिनेटली देयर कि ऐसा नहीं है कि इनमें से एक ही स्टेटमेंट कोई सही है, एटलीस्ट 2 तो सही हैं क्योंकि ए वाले ऑप्शन में 1 और 2 है. सो यू टेल मी इसका आंसर क्या है. दी नेक्स्ट विल स्टार्ट विद दिस. आज आने वाला डिस्कशन बड़ा हो गया इसलिए वी आर अनएबल टू डू मोर क्वेश्चन. धीरे धीरे वील इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन. एंड जो थ्योरी हम देख रहे हैं वो हम सिस्टमैटिक मैनर में पूरी लेंगे. या हम थोड़ा थोड़ा साथ में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देर आर चांसेस कि वो रिलेटेड क्वेश्चन से क्वेश्चन माइट कम in this year's paper. So that's it. If you have any other doubt then you can comment. If you need some resource then also you can tell me. I'll provide you with the PDF of the same. So that's it. Thank you and all the best.